गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि बताया था आपको कि आज हम लोग जीएसटी के बारे में जो भी इस साल देखने को मिला है, ईयर एंड एक्टिविटी में क्या क्या होना चाहिए था, उसको लेकर आज आना था हमें। और हम लोग ये देखने का ट्राई करेंगे कि चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, आज के जो पैनलिस्ट हैं ये होंगे और सही तरीके से आपको गाइड करेंगे कि आपके बिजनेस के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एक्स एनआईआरसी के एक्स चेयरमैन हैं अनिल शर्मा सर, चंडीगढ़ से हैं। तो वेलकम सर, अनिल शर्मा सर। Thank you, sir. Thank you very much. सर 1 मिनट इंट्रोडक्शन। Just a minute. शर्मा साहब की आवाज नहीं आ रही। अभी संदीप सर बोलना स्टार्टिंग किया सर, कुछ चेक कर रहे हैं अभी। जी जी जी। I think there is some technical glitch. शर्मा सर आपको हम सुन पा रहे हैं। अनिल शर्मा साहब बोलिए सर, एक बार ट्राई कीजिए। Yes. Am I audible? यस सर। यस Am I audible? यस सर। यस Am I audible, sir, now? यस सर, ऑडिबल सर। Thank you. Sorry, some disturbance is there. I am friends, CMA Anil Sharma, as told by Sandeep Kumarji. Right now, practicing cost accountant and GST consultant at Chandigarh. Before I started my practice in 2003 at Chandigarh. Before coming to practice, I was with Gas Authority of India, Gujarat Upmoja Cement, Rama Petrochemical for almost 16 years. So after having a 16-17 years of experience in big corporate sector, manufacturing sector, started my own practice in 2003 as a cost accountant. As indirect tax was one of my core area in industry also, apart from my costing. So since 2003 in Chandigarh, practicing as a GST consultant also, because when Mr. late Shri Atal Bihari Vajpayee ji informed that country will be having GST in line way back in 2000, I straightway following GST day one and gone through all reports of the central government and other documents related to GST, and till now have conducted more than 200 seminars, workshops, also written almost 30-35 articles on various issues under GST, and also one of the panelists for various TV channels, All India Radio, for GST issues or some contemporary issues related to economy, and also visiting faculty to NASIN or Income Tax Training Institute and many management institutes in the area. Was chairman of North India Regional Council of Cost Accountant of India 1920, and now as a practitioner giving consultancy. सर वॉइस ब्रेक हो गया आपका अनिल सर। चलिए हम नेक्स्ट संगम अग्रवाल जी से, जो कि रीजनल काउंसिल मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एनआईआरसी के। बट 2 मिनट फॉर इंट्रोडक्शन। Thank you so much, Sandeep ji. First of all, I want to thanks to Sandeep ji and the team INCOC for organizing this great webinar. And friends, if I talk about myself, CA Sangam Agarwal, I qualify my CA in 2009,
And initially, I did work with one insurance company, Ifotoko General Insurance. After 2 years, I came into my own practice. From last 12 years, I am doing my own practice. And currently, I am a regional council member of ICAI from Northern Region. In first year, I was a secretary as well. So during my secretary tenure, I did lots of work for the institute, and till date also I am doing lots of things for the institute. I am a regular speakers on different topic. And Anil sir, on 27th, I am coming to the Chandigarh as well to speak on a My very. pleasure. My pleasure. I am coming to Chandigarh to Please address give me a ring. at the ICI branch on the section 43BH under Income Tax Act with MSME. On this topic, I am coming to Chandigarh as well. And sir, I used to write my articles and different platform of the social media like CA Club India, Tax Guru. I have written more than 100 articles on very important topic. I used to try to write article every week on the relevant topic. I write one article on 43BH, which was uh, within a week. The article seen by more than 50,000 participants. So uh, this kind of reach are there on my articles. And apart from that, I have my own YouTube channel as well in the name of CA Sangam Agarwal, where I have more than 5,000 subscribers. So I used to make some small videos on the educational things to so that my purpose to spread the knowledge and my knowledge should go to each and every person. So this is my brief profile. My main core area of working with GST and income tax. I look into the litigation part of these both areas. Over to Sandeep ji. सर हमारे साथ एक सीएमए प्रोफेसर में हैदराबाद से जीएसटी स्पीकर 2017 में मैं मिला था इनसे, और हमें उस टाइम लगा था कि इनसे बेटर जीएसटी एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता, और उस टाइम से कंटिन्यूअसली सीएमए इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं। मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन चाहूंगा बीएम गुप्ता सर से। Thank you, Sandeep ji, and good evening, all of you. I thank the Sandeep ji and his team for organizing this very apt topic, a panel discussion on e-learning activities for GST. This is very key. And coming to my introduction, I am a qualified cost accountant in 1998, and I worked in various technology-related industries and manufacturing companies. And from 2017, I'm into practice of GST. Currently, I handle only tax and technology litigations. And I've also contributed various articles to the tax bulletin of our institute, and I'm also the editorial board member and co-opted member for Indirect Taxes Committee at the Institute of Cost Accountants of India. And I'm also a regular trainer at NASIN, then for CAG auditors, for Indian Navy, and then at Ministry of MSME and visiting faculty for various colleges. And I've authored around 9 books on Indian GST, and my articles, blogs, views can be seen at many of the leading newspapers in India and across also. And I'm also a sports enthusiast. Thank you, Sandeep ji. Thank you, sir. Now I request to CA Lalit Agarwal, sir. Please introduce. Thank you, Sandeep ji, and thank you, team INCC, for this opportunity. I think start with I qualified in November 2010 as a CA final rank holder. Then I spent almost 7-8 years in consulting in Big Ten, including KPMG and Grant Thornton. From last 6 years, I'm doing practice in Delhi, Netaji Subhash Place, and I own office at Lakshmi Nagar also. So I'm doing mainly practice into GST, customs, and indirect taxation as a whole profile. I have done many assignments in foreign trade policy and SEZ, STPI sector. So this is my background in as a professional. Thank you. थैंक यू ललित सर। हमारे साथ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन EIRC अजयदीप बादवा सर हैं, और जो कि हमारे साथ बहुत सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। झारखंड में हम लोग काफ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं। सर से इंट्रोडक्शन चाहेंगे अपने ऑडियंस के लिए।
Thank you, Sandeep ji. First of all, thanks for inviting me in this, platform. Basically, right now, presently, I am a practicing cost accountant. But so far practicing is concerned, I am a newcomer. I started practicing only 1.5 years back. Earlier, I was working in Coal India Limited, and I took VRS 1.5 years back when I was from Coal India, the premises of Coal India. When I took VRS, I was posted at Kolkata as head of finance. Now I am from Ranchi, Jharkhand, and now I am engaged in practice. And I am also a teacher. I take sessions in, for in different, educational institutes like St. Xavier College, Chartered Institute, Company Secretary Institute, Costing Institute. Then CAG in Ranchi, CAG is having a regional training institute. So I am a regular faculty of that institute also. I have taken sessions in XIMB, then XLRI Jamshedpur, then IMT Nagpur. I have written few books also. One book was, my first book was on cost accounting standards. Then I wrote, 2 or 3 books on motivation. So presently, so far practicing concerned, I am a newcomer. So I think this is a learning session for me also. This is my small introduction. Thank you, Sandeep ji. एक बार पुनः आपको बुलाने के लिए और मौका देने के लिए धन्यवाद. अनिल सर, क्या लगता है आपको जो ईयर कंप्लीट हुआ है इसके अंदर जीएसटी के अंदर यदि देखें बिजनेस में, There is some connectivity issue today. I don't know why. ठीक अनिल से सुन नहीं पा रहे संदीप जी आपको ना. ठीक है संगम No, सर, Sandeep is not there now. Am I audible? Yes, you are audible, sir. Yes, sir. But Sandeep is not there. No, I am he's not there, sir. able. Okay, but I am not able to. No worries, sir. We all are able to see you, sir, and listen to you, sir. Sir, you are audible as well as visible. You can continue. No issue, sir. No, it's something is asked to me. सर Sir, you know Sandeep ji very well. Sandeep ji sometimes does magic. Sometimes he become invisible. So don't worry, sir. You are visible and audible. You can continue. सर सुन पा रहे हैं No, अनिल my सर? point is because I was out of connection, so if anything asked to me, which I am supposed to reply, if he can repeat me the question what he asked to me, or should we start with the discussion on the today's topic, that is year-end GST compliance checklist? What we have. Sir, उन्होंने आपको यही करने कहा, sir. You start that discussion. No issue, sir. Yeah. So friends, our today's basically discussion is related to year-end closing, which we are supposed to do on 31st March. So based on that and as per the books of accounts is the requirement, what compliance we need to do under GST, that is important for all of us being a accountant or maybe a legal professional. So one and the most important thing is related with our availing ITC on pending invoices, because what I feel logically and otherwise also, ITC is my cash. It's just like my working capital. So whatever bills are pending with my accounts people or maybe with operation people, especially I have seen that problems are being faced by PSUs where long-term contracts are going on. So where contracts are for 3, 4, 5 years and contractors are not submitting bills in time before 31st March. And they normally get the bills in the month of July, August or so. And it has happened many times that bills come to accounts department even after 30th September or 30th of November. So this is the major issue where the number of cases are there where they are unable to avail ITC for the financial year. So if anybody has any better option or a suggestion in this particular area, where especially in the case of PSUs, if we can from institute side also and otherwise also can guide our clients that how we can overcome this problem. Please, if you can share some of your suggestions or your experience in this. BM Gupta, especially in case of big infrastructure projects.
Sir, you are very right. When I was sorry, sir. Yes, sir. Please. Yeah. You were No, saying I something. see this as a common issue in case of infra projects, basically. Even in the private projects also, we see this, the bills don't come on time. And even the RA bills, even which they're submitted by the contractors, they need to be vetted by the technical team and the field engineers, basically. That will take a lot of time. So what I've suggested for one of my clients is, whenever they receive any invoice, that is the RA bill, immediately it should be sent to the accounts department, and accounts department will make a provision for that. That means they enter the values there, basically, and they keep tracking of that. And since it is an RA bill that needs to be certified, there will be some additions and deductions that can be subsequently handled through a credit note or a debit note, so that this will become very easy. Or else the other challenge what I find is, apart from the ITC, what Anil Sharma ji has rightly said, is reporting it in 9C also, where the bills have been received or the invoicing has been not done, revenue invoices not generated, quantifying that, reporting that in the financial statements, income tax computation, that becomes a challenge everywhere, basically. So we need to ensure that one is on the supply side, that is we need to issue the invoices, and second thing is on the incoming side, inward supplies, things also have to be accounted. Yes, cut pit jo bhi hota hai, that can be handled subsequently, but the fundamental information should be issued. And one last point which I would like to make here is 16(4), which has been upheld constitutionally by various high courts. So it is recommended to enter these input tax credits invoices in the month of March only, so that it will be very easy for everybody. Yeah, Sandeep ji, over to you. Sir, I have one suggestion. Yes, yes. Yeah, Sandeep ji, please, I Varma. have one suggestion. या प्लीज बाबा जी बताइए. हाँ, एक्चुअली क्या सर कि कोल इंडिया में उन्होंने किया था कि अगर आपके बिल डिले से आएंगे, उन्होंने कई नए एग्रीमेंट में प्रोविजन किया है कि इफ सपोज द पार्टीज दे डू नॉट सबमिट द बिल इन टाइम, and if coal company receives the bill late, which means after the due date, cut-off date, after that when ITC is not available, in that case GST will not be paid. And that case GST has to be borne by the service provider itself. Customer will not pay. They will pay GST only if they receive the bill in time, so that they can avail ITC. So now they are trying to insert this clause in. I mean, we are facing problems so far NTPC or L&T is concerned. We are facing this problem, but so far small contractors are there. This this clause is being inserted. Right. So this may be one of the solution. Lalit sir, if you can throw some light on this, Lalit ji. Sir, I think it's a better way to go through if the supplier accepts these conditions. But in routine scenario, the suppliers are like, okay, they don't understand the ITC provision somewhere. The 16(4) is still under the Supreme Court's decision pending on that also. But yes, if supplier agrees on these terms and conditions, this is the best solution available with us. But small service providers and medium and small entities, these suppliers will never agree on these terms and conditions while working with the other clients. Sangam sir? Yeah, that can be there. Sangam ji, if you can say something on this. बिल्कुल सर. सर मेरा खुद का मानना ये है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि जो हमारी मैक्सिमम ऑडियंस है सर वो मिक्स भाषा को ज़्यादा अच्छे से समझती है, तो मैं अपने वक्तव्य को हिंदी में लेना चाहूँगा यहाँ पे कि जितने भी मैक्सिमम बात बिल्कुल ठीक है. अगर हमारा इनवॉइस मुझे टाइम पे प्राप्त होगा तभी मैं उसको 2A से रिकंसिलेशन करके उसका 2A 2B से रिकंसिलेशन करके उसका इनपुट टाइम से ले पाऊंगा. बट लेकिन जीएसटी के जितने भी प्रोविजंस है वो मुझे बाद में भी उस इनपुट को लेना अलाउ करते हैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है लेकिन लीगल डिफिकल्टीज नहीं है. अगर हम ऐसा कोई एक इंटरनल रूल बना सके और फॉलो कर सके तो बहुत अच्छा है वो. बट लेकिन अगर किसी कारण से हमें कोई इनवॉइस लेट मिल रहा है हमें, बट तब भी उसका हम लीगली क्रेडिट ले सकते हैं, बिकॉज जीएसटी में ये प्रोविजंस हैं कि अगर आपके 2A 2B में आपका आ चुका है और अपने करंट बंदे का बिल रिसीव नहीं हुआ, लेटर ऑन जब भी बिल रिसीव होगा तो आप उसको 3B में क्लेम कर सकते हैं. हो सकता है कि उस महीने आपके 2A में कम इनपुट क्रेडिट नजर आएगा, 3B में ज्यादा आएगा, बट लेकिन अगर आप
पूरे साल का देखेंगे तो आपका वो मैच हो जाएगा। तो लीगली आपको वो चीज अलाउ की जाती है, बट लेकिन सेफ्टी पॉइंट व्यू से अगर आप अपने सप्लायर को ऐसी कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे मंथ टू मंथ आपकी कोई मिसमैच नहीं आएगा। अभी आपको बताना चाहूंगा सर, 2017-18 के दिल्ली में जितने भी नोटिस आए हैं हमारे पास DRC 01 के, वहां पे डिपार्टमेंट ने मंथ टू मंथ ये चेक करी और मंथ टू मंथ डिफरेंस निकाल लिए, जबकि पूरे ईयर के देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये कोई Yes. आईटीसी किसी मंथ में लेना रह गया तो मैंने अगले महीने ले लिया उसको, पर डिपार्टमेंट ने 3B को मेरे 2A से मंथ टू मंथ चेक किया और डिफरेंस निकाल के मुझे नोटिस भेज दिया। और ड्यू टू which is not a correct practice. यस सर, दिस विच इज नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस, और कुछ केस में से डिपार्टमेंट ने 73 के ऑर्डर भी पास कर दिए। उसके बाद हमने Yes. आगे डिपार्टमेंट में अपील फाइल करी है सर अप्रैल 1 के अंदर बेसिकली। तो Right. अगर हम ऐसा कर सकते हैं, बादल सर ने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि अगर हम ऐसा कर पाए कि अपने वेंडर्स को ये बात बोलें कि भैया आप टाइम से बिल दोगे, अगर टाइम से बिल नहीं दोगे तो हम जीएसटी पे नहीं करेंगे। अगर इतना स्ट्रिक्टली हम अपने बिजनेस को फॉलो कर सकते हैं तो एक मतलब स्टैंडर्ड एक आइडियल सिचुएशन मानी जाएगी बेसिकली वो वाली। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि काफ़ी कंपनीज ने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि जब तक आपका बिल 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होता या 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता, दे डोंट रिलीज जीएसटी पेमेंट। बट क्योंकि इनिशियली स्टेज पे 17, 18, 18, 19, इवन 19, 20 में भी काफ़ी जगह पे खास करके जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें NHPC है, NTPC है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वहाँ पे बिल 30 सितंबर या 30 नवंबर के बाद आए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्रीमेंट में एक टर्म नहीं थी कि उनको जब अगर जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता तो उनको पेमेंट नहीं करनी है, तो ऐसे कुछ केसेस लिटिगेशन में चले गए हैं। और आईटीसी का जो इशू है वो बना हुआ है कि जो प्रिंसिपल है उसको आईटीसी डिनाई हुआ है बिकॉज बिल केम आफ्टर 30 सितंबर। So that issue is there, but yes, this is with the practice now people have started कि भी वो इस चीज को ओवरकम कर सकें और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को उस हिसाब से अमेंड कर सकें जो कि 17, 18 या 18, 19 में नहीं किए गए, क्योंकि Yes. पीएसयूज में ये और पीएसयूज में ये बड़ी इशू की बात बन जाती है, बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वहाँ पे थोड़ा प्रोसीजर लेंथी हो जाता है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको इन बिटवीन चेंज नहीं कर पाते, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 8-8, 10-10 साल के लिए ऑलरेडी साइन हो चुके हुए हैं। तो ये प्रैक्टिकल इशू है, लेट्स सी कि ये कितनी जल्दी और कैसे इसको रिजॉल्व किया जाता है। या मैं ये मान के चलता हूँ कि जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इशू करे हुए, वहाँ पे जीएसटी काउंसिल को इसके ऊपर एक एडवाइजरी या गाइडलाइंस इशू कर देनी चाहिए कि जहाँ पे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं वहाँ पे आईटीसी बिकॉज ऑफ 30 सितंबर जो है डिनाई नहीं होना चाहिए व्हेन इट इज अ कंटिन्यू सर्विस। Yes. यस सर, ये गुड सजेशन है, क्योंकि क्या होता है सर, जैसे कोयला, अब आपका कोयला जाता है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भटिंडा, रोपड़, लहरा मोहता, अब कोयला लगातार जा रहा है। अब ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि किस रेट का कौन से बिल है, क्योंकि एडवांस पेमेंट आ रही है, वो बाद में एडजस्टमेंट भेजते हैं, या आईटीसी का इशू आ जाता है सर। तो ये आपका सेशन अच्छा है कि ये बहुत अच्छा सेशन है कि जहाँ पर रेगुलर सप्लाई है, हाँ जी, कंटिन्यूस सप्लाई है, वहां पर कुछ इसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए। रेगुलर सप्लाई है। सर जैसे मान लो डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 6-7 साल चलना है, तो पता कि ये डैम तो कंस्ट्रक्शन होनी है, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर बिल डिले हो गया 30 सितंबर के बाद आ रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आ जानी चाहिए, बट आई फील। यस सर। सर एक इशू मेरा है संदीप जी, मैं एक इशू रेज करना चाह रहा था, पता नहीं अगले आप हाँ जी सर, रेज कीजिए प्लीज सर, प्लीज सर। जैसा मैंने कहा ना कि मैं बहुत पुराना प्रैक्टिस में नहीं हूँ, मैं 1.5-2 साल अभी मुझे नहीं हुआ है, 1.5 साल से कुछ ज्यादा हुआ है। कई क्लाइंट ऐसा जिनका मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिला भी, पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अब क्या आ रही है, जो शुरू में मैं 1.5 साल पहले नहीं थी, पर अब बहुत जोर आ रही है। लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, इसके चलते क्या होता है, जब किसी क्लाइंट का मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ, तो खासकर जब वो गुड्स सप्लाई का, गुड्स का है, नॉट सर्विसेज का। सर्विसेज केस में तो मैंने देखा है कि आ जाता है, वो केस को रेफर कर देते हैं। वो जो आप जब ऑनलाइन आप करते हैं ना, तो बाद में आपको आ जाता है कि योर केस हैज बीन रेफर्ड टू योर लोकल जीएसटी अथॉरिटी। वो नाम आता रांची, सपोज आई एम फ्रॉम रांची, तो रांची जीएसटी ऑफिस को आ गया। उसके बाद जीएसटी रांची ऑफिस कुछ क्वेरी रेज करता है कि आपको ये पेपर सबमिट करने हैं। जब ये पेपर ऑनलाइन सबमिट करते हैं तब भी वो क्लियर नहीं करते हैं, और जब मतलब मजबूर करते हैं कि क्लाइंट आके उनसे मिले, और फोन पे तो बात करते नहीं कि रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जब वो मिलते हैं तो वो फिर सीसीटीवी कैमरा ऑफ करके या साइड में जाकर उनसे पैसे की मांग करते हैं। नाउ दिस इज नॉट ए सर एक्सेप्शनल केस, दिस हैज बिकम रूटीन।
स्पेशली इन स्मॉल केसेस। क्या है कि दुकानदार के पास थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसके पास हो सकता है कि मकान मालिक ने सारे पेपर ना दिए हो, किराए की दुकान में है वो, या ऑनरशिप में वाइफ की दुकान, फादर की दुकान, भाई की दुकान में वो चला रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ इशू है। और जैसे वो शुरू करते हैं बड़ी अमाउंट से और 2-3 हजार रुपए लेकर सारे पेपर इग्नोर कर देते हैं और उनको रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देते हैं। ये पॉसिबल है सर कि इसका अगेंस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? बिकॉज मैनी स्मॉल जीएसटी कस्टमर्स, आई मीन जीएसटी रजिस्टर्ड जीएसटी टैक्स पेयर्स, small businessmen, they are facing this real problem, practical problem. I do agree, क्योंकि sir. आपने जैसे इसको 1-to-1 अलाउ कर दिया, फेसलेस पहले था वो खत्म कर दिया, 1-to-1 अलाउ कर दिया, देन सर करप्शन तो आ ही जाएगा बीच में। क्या आप सर, लोग अपने यहाँ ऐसा फेस कर रहे हैं? सर ये चीज ना सर हम लोग अगला सेशन में ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज द जी। टॉपिक व्हिच इज फॉर ईयर एंड एक्टिविटीज फॉर जीएसटी। सो चलिए, लेट्स ठीक है, डिस्कस ओके, दिस। ओके। और रजिस्ट्रेशंस का जो भी है, we'll have a definitely one more session, and this is a common issue which are facing across India. Okay, sir. Okay. Now this is being faced by all of you. Yes, sir. Okay, okay. Thank you. सर संगम सर So friends, next जो year end activity जो important है वो है, if you are an exporter, then because of now year end is there, so for 24-25 you are supposed to file LUT in case of export. So that is very important, and if you fail to do so, definitely problem will come for the exporter, for your client or the company where you are working. So we have to be very careful about this, that before 31st March we have to file our LUT if we are exporting the goods or the services. शर्मा सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा एलयूटी के रिगार्डिंग, एक मिनट लूंगा सर, कि बिल्कुल ठीक बात है सर, हमें 31 मार्च 2024 तक उस एलयूटी को अप्लाई कर लेना है। बट अगर हम किसी भी रीजन से उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, 1 अप्रैल 2 अप्रैल को हमने कुछ भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया हमने, तो उसके ऊपर हमको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के जो बेनिफिट मिलते हैं, दैट मीन जब विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर मुझे 5 अप्रैल को मुझे याद आता है कि सर मेरा एलयूटी भरना रह गया है, तो 1 से लेकर 4 अप्रैल तक जो मैंने एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स से सर्विसेज, उस पर मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज का, मतलब वो मुझे मैंडेटली पेमेंट करना पड़ेगा उनके ऊपर जीएसटी का, और बाद में फिर रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। बट जब मुझे 5 अप्रैल को मुझे याद आया, तब मैंने एलयूटी के लिए अप्लाई कर दिया और 5 अप्रैल को मुझे एलयूटी मिल गया, तो उसके बाद जो मैं एक्सपोर्ट करूंगा पूरे साल के लिए, उसके अंदर मुझे विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी का बेनिफिट मिल सकता है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, इसलिए डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं फरवरी के मंथ में ही प्रोस्पेक्टिव ईयर का आपका एलयूटी अलाउ कर देता है, जिससे कि सब लोग लास्ट मोमेंट पे अप्लाई ना करते हुए 2 महीने के टाइम के अंदर पहले से ही उसको अप्लाई कर ले बेसिकली। तो ये बेसिकली रहता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग एक्सपोर्ट और सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में डील करते हैं, जरूर टाइम से अपना एलयूटी अप्लाई कर लें। ओवर टू यू। या बिकॉज मैं इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कंपनी में जब भी कभी आप एडिशनल कॉस्ट इनकर करते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल हिट करती है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट को बढ़ा देती है। तो वी मनी सेव इज ए मनी अर्न, तो हम ऐसी सिचुएशन ना आने दें कंपनी के अंदर या क्लाइंट के पास कि वो इस तरह से उसको एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाए वर्किंग कैपिटल की और उसको एडिशनल कॉस्ट पड़ जाए। भागवत जी आप कुछ कहने वाले थे सर? मैं बोल रहा था कि आप ठीक कर सर, नॉट ओनली एलयूटी, कंपोजिशन स्कीम और क्यूआरएमपी स्कीम में भी जिनको अप्लाई कर, जिनको लेना है फैसिलिटी, उनके लिए मेरे ख्याल से 31 मार्च और 30 अप्रैल रिस्पेक्टिवली लास्ट डेट है। तो ये भी ईयर एंड वो भी इस बारे में जो भी डिसीजन लेना फटाफट कर लें, अदरवाइज कंपोजिशन स्कीम और साथ में आपके जीटीए भी जो है वो भी अगर फॉरवर्ड चार्ज में या रिवर्स चार्ज में रहना चाहते हैं, उनको भी अपना डिक्लेरेशन फाइल करना होगा ईयर एंड पे। जी जी। And sir, one more addition to this list. One more addition to this list. From 1st April onwards, the input service distribution registration is made mandatory. So Yes, I think this is a new compliance which is coming to the assessees who have multi-locations GST numbers under same PAN. So everyone has to assess the implications, their compliance, and they have to take the registration, identify such suppliers who are qualifying, who are giving the common services to across India level to them, right? They have to give their GST numbers to such suppliers so that they can update their records going forward. So I think this is one of the major change which is coming from 1st April 2024. Very true. सर ये जो friends, लाइव है, apart from this, another issue is regarding issue of debit credit note which are based on your performance during the year. मीन्स अगर कोई आपका डीलर या कोई आपका कमीशन एजेंट एक साल में एक स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस करता है, तो उसको एडिशनल डिस्काउंट जो दिया जाता है ओवर एंड अबव,
तो उसका भी रिकॉन्सिलिएशन और उसका डेबिट क्रेडिट नोट इशू करना और उसके बाद उसको इंश्योर करना कि आपके सामने वाली पार्टी ने जो है उतना आईटीसी रिवर्स कर दिया, ताकि आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी कम होगी वो तभी होगी जब आपके डीलर ने उतना अमाउंट रिवर्स कर दिया आईटीसी के अंदर। तो वो भी 31 मार्च की परफॉर्मेंस देख के फिर उसका डेबिट क्रेडिट नोट इशू करना, फिर उसको इंश्योर करना, उससे कंफर्मेशन लेना कि जी उसने आईटीसी रिवर्स कर दिया, क्योंकि मार्च की रिटर्न है तो अप्रैल में फाइल होएगी, तो लेकिन वो 31 मार्च का कट ऑफ बना के हमें उसका पूरा रिकॉन्सिलिएशन वर्किंग करना पड़ेगा। वो भी एक एक्सरसाइज है जो 31 मार्च को कंप्लीट होनी चाहिए। Am I right, sir? हाँ सर, Yes, sir. यू आर वेरी मच राइट देयर। इधर और एक चीज याद करना चाहिए और काम में वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस इज especially in case of trade based discounts, basically turnover discounts, a cash discount there, we need to ensure that these clauses are embedded in the contract without an open statement, the turnover based discounts, because we have seen a lot of notices being issued where the clauses are not clear in the contract. So going forward, please ensure that all these contracts are updated with all these terms basically, so that when you issue the credit notes on the turnover basis, your liability is reduced, or else you'll be ending up with treating it as a non-financial credit notes and you have the tax implications there. And this will happen at a subsequent period of time where you have notices being issued under 73 or 74 that again leads to litigation. So identify all these transactions, and last 2 years we have seen the pattern on which basis the notices are being issued, especially for these debit notes and credit notes. Revisit the key contracts, update the terms, and take the management approval wherever required, and then inform all the suppliers and customers. Right. So friends, next issue with me is regarding cross charge transactions. So wherever headquarter cross charge transactions are there, so we have to complete it within 31st March by finalizing the books of accounts, और उसके ऊपर जो liability हमारा बैठता है वो liability भी हमें जो है, हेलो बेबी जी कैसे हो? सर ये जो लाइव है, हेलो बच्चे, फेसबुक, लिंक्डइन और this is a break for commercial, पे है। this is a commercial break for our तो फ्रेंड्स क्रॉस चार्ज का भी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी एंड इट क्रिएट्स एडिशनल लायबिलिटी ऑन कंपनी. So in this case, it is very difficult for working out an allocation of and the basis of that, and then total reconciliation, and also collecting the means basis. Basically, the issue is how we evaluate for unit wise cross charge debit note or invoices. So this is another important issue for 31st March. So if you people can add someone in this. Yes, Sharma ji, this is also a very important critical area basically, and this I see at least not a challenge in case of cross units where the other unit is eligible to take input tax credit. Right. Because the provision for valuation clearly says that if input tax credit is being taken as a second proviso, they say that you can be, the transaction value can be anything. So we did not follow the whole mechanism of valuation. Yes, but in case where you're not able to take input tax credit, like the hospitals chain basically, where you see nowadays very common, for them input tax credit is not eligible. So that can be one challenge there. But nevertheless, whatever needs to be computed, as Anil Sharma ji has said, what should be the basis? It may be the turnover or the manner spent for each registration, whatever be the case. We can look up at the cost overheads allocation from the cost accounting standards and take an appropriate one which is suitable for us, and then make it in line with the cost audit reports wherever it is applicable, or cost audit records, and take a clue from there and then derive this activity very easily. Sir, I think the employee cost can be avoided while calculating the base for this valuation purpose. I think the circular particularly says this. Yes, again, it's a debatable topic, and sometimes we always tell the clients, though the circular says this, include it, give your rationale, and close the issue. Yes, obvious. Instead of going into litigation, better you close the issue. Yes. So better to opt both cross charge and ISD and follow all the rules. Yes, sir.
And friends, another important issue from 31st March point of view is physical verification of the stock and stores. So. Maybe of raw material, maybe a store, maybe another inventory. So if there is any shortage reported, definitely we are supposed to take action and we have to reverse the ITC. And if it is there any excess, then we have to do that also why it is so. So that is important from accounting point of view also, and as well as from GST point of view also. So if you can add something more in this, please. सर please continue. अपार्ट फ्रॉम अनिल सर, आपके पॉइंट सर, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि पूरे साल के अंदर हमारे 2B में जितने भी इनवॉइसेस आए, हमने उसका अप्रोप्रिएटली आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। उसके अलावा ऐसा हमने कौन सा आईटीसी लिया जिसका 2B में नहीं आया? अगर ड्यूरिंग द ईयर, अभी मार्च के महीने में हम उसकी रिकंसिलेशन करके उन सप्लायर्स को इंटीमेट कर दें, और वो कम से कम जो मार्च की जीएसटी का 1 फाइल होने वाली है उसमें उस एरर को करेक्ट कर देंगे, तो हमारे जितने भी एरर ओमिशन है वो सेम फाइनेंशियल में क्लोज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा 9 और 9C फिल करते वक्त हमें उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा, वो एक रिकंसिलेशन आसान हो जाएगी और डिपार्टमेंट को लेटर ऑन उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये बहुत बड़ा काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि पूरे 12 महीने की, अप्रैल से लेकर अब तक की पूरी रिकंसिलेशन करके, कोई भी हमने एक्स्ट्रा इनपुट ले रखा है जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है तो उसको रिवर्स कर दिया जाए, कोई भी इनपुट मेरे 2B में नहीं आ रहा, मैंने इनवॉइस के बेस पे ले लिया, उसको भी मुझे चेक करके पार्टी से बात करके उसको करेक्ट करा लेना चाहिए। बहुत होता है पार्टी ने B2C का इनवॉइस दे दिया जबकि मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो अगर हम टाइमली उनसे फॉलो अप करेंगे तो वो करेक्शन पॉसिबल है उसके अंदर। तो ये करना एक बहुत ही पैरामाउंट काम है, क्योंकि बाकी जो सब काम है एक तरह से रिकमेंडेटरी काम है, ये काम बड़ा मस्ट है, वो तो बाद में हो जाएगा, अप्रैल मई में हो जाएगा, बट लेकिन उस समय हमें जीएसटी 9 की हेल्प लेनी पड़ेगी उसकी रिकंसिलेशन दिखाने के लिए कि वो ऐसा इनपुट था जो मैंने बाद में 2B के अंदर आया। अगर उसको पहले हम ठीक करा लेंगे तो बड़ा इजीली एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एसजीएसटी या सीजीएसटी डिपार्टमेंट जाके उनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर मैंने कब लिया, कब मेरे 2B में आया, उन सब चीजों को बेटर है कि हम सेम ईयर में रिकंसाइल कर लें। ओवर टू यू। वो तो सर है ही कि भी मेरा मानना ये है कि जब हम पूरे साल की रिकॉन्सिलेशन करेंगे उसमें मेरी टर्नओवर की टोटल रिकॉन्सिलेशन बुक्स वर्सेस जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटी 3B, ये मुझे टर्नओवर बेसिस पे करनी है। टोटल रेवेन्यू व्हाट वी हैव जनरेटेड मे बी जीएसटी रेवेन्यू और नॉन जीएसटी रेवेन्यू, उसका ओवरऑल रिकॉन्सिलेशन मुझे करना है। सिमिलरली फॉर आईटीसी आल्सो, आईटीसी इन माय 2A 2B claimed in 3B and what is there in my books of account and what is there in my ledgers, that we are supposed to do without failure as on 31st March। वो रिकॉन्सिलेशन तो मेरी ओवरऑल होनी ही है, और उसके अलावा मेरा ब्लॉक क्रेडिट्स अगर कुछ है या मैंने कुछ चीज कैपिटलाइज कर दी है वो भी मुझे देखना है, उसको भी मुझे रिकंसाइल करके उसको रिवर्सल अगर है तो देना है, और जहां मैं रिवर्सल कर रहा हूँ वहां पे मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट की मेरी इम्प्लीकेशन क्या आ रही है, दैट आल्सो आई हैव टू सी, कि वो अदरवाइज मुझे पेनल्टी का उस पर इशू आ जाएगा। उसके अलावा जो सर एक मेरा पॉइंट हमेशा जो मैं डिस्प्यूट करता रहता हूँ, मैंने काउंसिल को भी कई बार लिखा है कि जो 180 डेज का प्रोविजन है कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी इफ पेमेंट इज नॉट मेड विद इन 180 डेज टू द वेंडर, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है टू बी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो 180 डेज का इशू है ये आपको 31st मार्च का जो बैलेंस है उसके ऊपर करना चाहिए, नॉट फॉर एवरी इनवॉइस। क्योंकि जब आप 31st मार्च की हम एजिंग करते हैं डेबिटर्स की और क्रेडिटर्स की, तो 180 डेज 31st मार्च का जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है उसको 180 डेज को लेके जो आता है वो रिवर्सल मार दो, बाकी सारे इनवॉइसेस को ड्यूरिंग द ईयर आपको रिवर्सल करने की जरूरत नहीं। अननेसेसरी इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अकाउंटेंट्स एंड टू द डिपार्टमेंट आल्सो, इट इज वेरी टीडियस जॉब कि भी आप एक बिल को उठा के उसका 180 डेज काउंट करते रहेंगे, और वो क्योंकि अगर आप सैप में या टैली में या किसी और सॉफ्टवेयर में चेक भी लगाते हैं, उस चेक को लगाने और उसको अमेंड करने की अपनी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, तो सॉफ्टवेयर को इतनी जल्दी हम अमेंड नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम, तो वो कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि 31st मार्च को जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का, उसकी एजिंग कर लीजिए, जो 180 डेज के ऊपर चले जाते हैं उनका आईटीसी रिवर्स करा लीजिए, जब वो पेमेंट हो जाएगी तब उसका आप वापस ले लीजिए। तो मेरा एक सजेशन है इसके ऊपर। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अपने पास एक इशू और इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूं कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड जैसे आपका नया साल शुरू होता है, आप अपनी आरसी जो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखी है उसके अंदर इनपुट्स और आउटपुट की जो HSN कोड आपने दे रखे हैं वो एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर आपकी प्रोडक्शन प्लानिंग जैसे खास करके फार्मास्यूटिकल में और इंजीनियरिंग कंपनीज में ये होता है कि मेरे पिछले साल में टॉप 5 कुछ और थे और अगले साल में मेरे टॉप 5 चेंज हो सकते हैं।
तो मुझे वो वैसे जो है एक तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन में जाके उसको अमेंड कर लेना चाहिए. व्हाट आई फील, इफ यू हैव एनी पॉइंट ऑन दिस प्लीज. सर मेरे हिसाब से जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर पे हम लोग देते हैं जीएसटी पोर्टल पे फॉर रजिस्ट्रेशन, that should not be a much concern. So for example, if I'm running like a retail outlet, I'll be having hundreds of SKUs and the HSN codes are also different. Every year for me, the turnover proportion to my turnover keeps changing for my revenue. So it is what we are doing, that should be there. I feel we need not revisit that anything. If any officer asks, that is a very valid point, but we need to explain them very carefully. Because in the middle of the course also business also, I may get up a new idea or there is a new requirement in the market. I pick up that idea basically as a businessman. I cannot go and say that yes, on 1st of April I'm not done, so I cannot do business now. So that is not much an alarming issue, but an alarming issue, one of things which I find here is, you can also add your points also here, co-panelists, the reconciliation between e-way bill, e-invoice and sales register. This is one area where the department is concentrating and issuing notices now. Yes. My turnover in financial books may be different. In my GST, it will be different. Because if I do interstate transaction, it is not affecting my turnover in my financials, but e-way bill is issued. So for that reason, to that extent, it is a reconciliation item for me. So here we recommend clients to do this on monthly basis, reconciliation between the sales register, e-way bill and e-invoice. And at the month end, we need to, especially the year end, we need to do it more carefully and have a reconciliation statement very clear. Because today the government feels that there's a huge revenue loss. So how do we handle this? And another, for this added fuel to this fire, we have this bill to ship to transactions. Yes. Especially in the case of bill to ship to transactions, the original supplier will issue the e-way bill in many of the cases. The other supplier, when he issues the tax invoice, it may be e-invoice, but he does not have a corresponding e-way bill, even though it is supply of goods. So that also will add as a difference in the turnover. So we need to identify all those things. If material is sent on job work, that also has to be added. Because once I get back the material, I'll be preparing one more e-way bill. But those two e-way bills will not be part of my turnover. Or I'm sending material outside for machinery for some maintenance or repairs, returnable gate pass, what we say normally. There also we issue e-way bills basically. Even those has to be accounted, and a separate delivery challenge series, if it is maintained for all these things and correlated with the e-way bill register and sales register, that would be very helpful while facing audits or scrutiny or any sort of investigations by the department. Right. Yes. But in the And registration, my point was, that point is very important, because one of my clients, he received a notice from GST department that for the year 2018-19, his income as per GST return and income as per ITR, income system, were not tallying. At that time, what he had done, he has taken the services. So for ITR of income tax is concerned, he has taken the help of one chartered accountant. And so far GST returns were concerned, it is being filed by his own employees. So there was a difference of more than rupees 2 crore. There was a difference of more than rupees 2 crore. Ultimately, sir, last month he had to pay. He has to pay the penalty, and So reconciliation is very important. This is the very important factor which I wanted to raise, but you have already raised this point. That Sorry, reconciliation is very important. Your ITR and income tax return and GST return, their sales value should match. Otherwise, now they are reconciling, and clients will get the notices, and ultimately they have to pay the penalty. Yes. And so one thing to add here, like we can also take into consideration my 26 AS and GSTR 7 data, because GSTR 7 versus GSTR 1 data, they are giving us the notices. Since 26 AS is for the PAN, 100% my PAN data, and my GSTR 1 may pertain to a single GST number. So they are asking for this data also, and we are getting notices in this matter. So GSTR 7 should also be considered while making these reconciliations, revenue regarding reconciliations at least. सर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आई थी कि ये पब्लिक सेक्टर में आई थी, पता नहीं, ये जैसे पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इनका कोयला जाता है सर पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्लांट्स में, जिनका हेड ऑफिस पटियाला में।
बिल्कुल ठीक है जी। अब हुआ प्रॉब्लम क्या हुई सर कि मैं ये थोड़ा मुझे 2 मिनट एक्सप्लेन करने में लगेगा, इसको मतलब थोड़ा सा सजेशन आप लोग सोचिए क्या करना चाहिए। उस पीएसपीसीएल ने क्या किया, कोयले जो होता है ना उसकी क्वालिटी कभी कभी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो वो कोयले को लोग वॉश कराते हैं। तो पीएसपीसीएल कोल इंडिया से कोयला खरीद रहा है। कोल इंडिया की कंपनी है झारखंड में, वो रजिस्टर्ड है, झारखंड रजिस्टर्ड जीएसटी एक्ट उसके पास है, नंबर है, और पीएसपीसीएल के पास पंजाब का है सर। पर उन्होंने क्या किया, एक एजेंट अपॉइंट कर दिया जो कोयला उनके बिहाफ पे उठा रहा था, पर वो ट्रांसफर कर रहा था अपने एक दूसरी यूनिट में जहां कोयला वॉश हो रहा था। उस कोयला वॉशिंग कंपनी जो थी वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर थी, उसका अलग जीएसटी नंबर था। तो जीएसटी अथॉरिटी ने इनको पकड़ लिया कि भाई कोयला पंजाब जा रहा, ट्रक में कैसे ले जा रहा है, ट्रक में तो पॉसिबल नहीं है इतना कोयला, 1 मिलियन टन कोयला एक ही साल में जा नहीं सकता है, तो आप ट्रक में कैसे ले जा रहे हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सर हम इसको ले जा रहे हैं बाई ट्रक अपने ही झारखंड के प्लांट में, वहां कोयले को वॉश करेंगे, उसके बाद बाई रेल इसको हम भटिंडा या भटिंडा तो बंद हो गया, रोपड़ या लहरा मोहब्बत ले जाएंगे। तो उन्हें कहा इसका वो क्या कर रहा था पार्टी, वो जीएसटी इनवॉइस अपने नाम से ले रहा था, मतलब उसने पीएसपीएल के नाम से कोयला उठा रहा था, जीएसटी नंबर अपना उसने झारखंड का दे दिया क्योंकि उसको जीएसटी वाले तंग करते थे। जैसे उसने ऐसा किया, जो पंजाब के जीएसटी अथॉरिटी है उन्होंने पीएसपीएल को चिट्ठी इशू कर दी कि भाई आपका कोयला जब ये इंटर स्टेट है, तो ये आपका इंटर स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी होना चाहिए, आईजीएसटी होना चाहिए था, आप सीजीएसटी एसजीएसटी बिल क्यों रेज कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए, कोयला जा रहा है पंजाब, नाम पीएसपीएल का है, उसका एक उसका एजेंट उठा रहा है झारखंड में, उसने अपना जीएसटी नंबर डाला हुआ है। तो अब आप समझ जाइए कि ये बिल जो रेज हो रहा है, जैसे वो झारखंड में कस्टमर का नाम लिखे पीएसपीसीएल, हमने जीएसटी नंबर डाला जो उसका एजेंट था, तो वो क्या करता था, कंप्यूटर ऑटोमेटिक सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करता था, झारखंड कोयला झारखंड में। अब फिर वो बाई रेल जाता था पीएसपीसीएल, तो पंजाब की जीएसटी अथॉरिटी ने पकड़ा। इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये अभी तो खैर जीएसटी अथॉरिटी मिल के हम लोगों ने क्या किया है, वहां क्या किया था मैंने तो छोड़ दिया है, हम आईजीएसटी नंबर डाल देते, वो बार बार पकड़ते थे कि अगर आईजीएसटी नंबर है तो ट्रक से कोयला नहीं जा सकता है, तो आप इसको सीधे पंजाब ले जाइए, झारखंड में ट्रांसफर मत करिए। तो मैंने एक सजेशन दिया था कि इसको आप अलग अलग सेल वैल्यू दिखाइए, और वो थर्ड पार्टी इसके लिए रेडी नहीं था। ये एक इशू कई बार आता है सर। अनिल शर्मा साहब यहाँ हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स भी हैं, कुछ इस पे क्या सोल्यूशन हो सकता है? Sir, this is a client-specific issue which we can connect offline Yes, and discuss exactly. it. Yes, sir. And one more important thing when it comes to the year-end compliances, what we need to see is, especially in the case of FMCG companies, for the heck of maintaining this or for the revenue to be booked, they'll be issuing invoices on the 31st of the March or 30th of March actually. Though that will be reflected in our 2B, we need to advise clients that you cannot take input tax credit because you have not received the goods as per section 16(2). Because receipt of goods is primary condition there. And Yes. I've seen recently one notice where the client has taken 100% ITC that got reflected in 2B. The department has issued a notice stating that material has been shipped on 30th. Within 24 hours, how could you receive the material and is having a proper e-way bill and vehicle number? So it takes minimum 6 days to come by road. So how can that you can take input tax credit on the same day? So this is one issue which we need to be very careful, not only for the year end, but every month end when we advise clients to file the GST or 2B while filing 3B, this point also has to be noted very carefully. And this issue I see predominantly coming up with the year end more actually. Yeah. Yes. One more point I want to add here. सर एक्चुअली जब हम नॉर्मल ट्रेडिंग गुड्स की बात करते हैं तो वहां तो हम जीएसटी चार्ज कर लेते हैं सेल के ऊपर। जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, देयर आर एन नंबर ऑफ केसेस की जब कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो वी आर फेल्ड टू चार्ज जीएसटी ऑन द कैपिटल गुड्स, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जब हमारी स्क्रूटनी होती है या डीआरसी का नोटिस इशू होता है वन का, तब हमें इशू आते हैं। तो हमें इस बात का बिल्कुल स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी एसेट पोस्ट जीएसटी परचेज करी है और उस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कराया आपने, तो आपको एट द टाइम ऑफ सेल आपको उस पर जीएसटी पे करना है। पहले जो हमारे वैट के समय मैकेनिज्म हुआ करता था, जब हम दिल्ली वैट की बात करते हैं तो हम उस क्रेडिट को 3 साल में डिवाइड करके लिया करते थे और उसको बाद में रिवर्स किया करते थे। वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अब लोग सेल करेंगे अपनी कैपिटल एसेट को, जो भी उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा उतने अमाउंट से जीएसटी हमें उसके ऊपर पे करना होगा। मैंने बहुत सारे डीलर्स को ऐसे जानता हूँ जो कैपिटल गुड्स के ऊपर अभी भी जीएसटी पे नहीं करते हैं,
तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की और नॉलेज की अभी कमी है। अगर हम अपने इस माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से उन सब एसएससीज को अवेयर कर पाए कि आप जितने भी कैपिटल गुड्स की सेल कर रहे हैं उस पर भी जरूर आप जीएसटी पे करें, और जो ये अभी मार्च चल रहा है इसके अंदर आइडेंटिफाई कर ले कि कौन कौन सी आपने कैपिटल गुड्स की सेल करी है, जिससे कि आपका विद इन फाइनेंशियल ईयर ये सब ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाए, जिससे आपको एक अलग से सेपरेट रिकंसिलिएशन बनाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। बिकॉज फ्रेंड्स आपके लिए तो बड़ा आसान है उस रिकंसिलिएशन को समझना, पर डिपार्टमेंट के एंगल से दे आर नॉट इजी। वो डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर से नहीं समझ सकते, उसके लिए हमको नोटिस भेज के आपको बुलाना ही पड़ेगा। जब एक नोटिस आ जाएगा, बुला लेंगे तो कहीं ना कहीं एक परेशानी खड़ी हो जाएगी बेसिकली। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कैपिटल गुड्स वाला। और हाँ संगम जी, हाँ आप संगम जी आप जो बोल रहे हैं वो सही है। सो व्हाट आई नॉर्मली एडवाइस क्लाइंट्स इज फॉर कैपिटल गुड्स ITC also have a separate ledger account so that your return filing in 9 becomes very easy. And at the same time, whenever you have any sale of fixed assets, that will be part of the asset schedule, fixed asset schedule. So while filing 9 also, we always check what is the sale that has been shown in 9C in fixed asset schedule. Accordingly, is input tax credit reversed and liability is also discharged. That also we do this as a special activity while filing 9. But आपने जो बताया था अभी 31st March को भी ये कर दिया तो बहुत अच्छा होता है actually. Of course, computation of depreciation can be different, but your accounting entries for sales will be always passed as and when you generate a sales invoice. So that needs to be verified very carefully. Sir, regarding input tax, yeah. हाँ जी ललित जी बताइए प्लीज। Sir, regarding input tax credit, I want to add 3-4 points which everyone should look after. While we are doing 2B RICO with books of accounts, so that RICO is okay, but we also see in GSTR 2B thoroughly. Okay. Yes. In first point is whether my supplier has filed GSTR 3B or not. After GSTR 1, whether he is filing 3B or not, whether he is paying to the government his outward tax liability or not. That also comes onus to us under Rule 37A. So we have to check whether there are such suppliers or not. If they are, we have to follow and ask them to pay the government. Otherwise, the onus will come to us again to reverse my ITC. नहीं ललित जी, मैं यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो 3B में टैक्स पे करता है वो इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं सबमिट करता वहां पे। तो मैं उसकी रिकॉन्सिलेशन या उससे लिस्ट मांगू, या तो कि भी मुझे बताओ आपने ये जो 2 लाख रुपया पे किया है 3B में, उस 2 लाख का ब्रेकअप क्या है, जो कि वो मेरे हिसाब से कभी मुझे देगा नहीं। तो ये थोड़ा टची पॉइंट है जहां पे मतलब कि हम अपने सप्लायर को फोर्स नहीं कर पाएंगे कि जो 3B में तूने टैक्स जमा कराया है या सेट ऑफ किया है उसका बिल वाइज डिटेल क्या है और उसमें मेरा बिल है कि नहीं है। सर इसमें मैं सिर्फ एक चीज रख रहा हूँ कि उसने 3B फाइल करी या नहीं करी वो इंश्योर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे 2A के अंदर वो कॉलम लिखा आता है कि उसने 3B फाइल करी या नहीं करी। मैं जस्ट इंश्योर कर रहा हूँ कि उसने 3B फाइल करी या नहीं करी, पे करा या नहीं करा, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। वो इशू है। Yes. अनिल शर्मा जी, उसमें अभी जीएसटी पोर्टल में एक प्रोविजन है, 1 साल से ज्यादा हो गया उसमें क्या करते हैं 3B लाइबिलिटी डिस्चार्ज्ड और GSTR 1 लाइबिलिटी परसेंटेज देते हैं जीएसटी पोर्टल में। दैट वी नीड टू गो एंड चेक फॉर ईच एंड एवरी टैक्स पेयर। उसमें बोलता है लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 इज 100%, 3B में 97% बोलता है। नाउ वेदर माय 3% द 3% डिफरेंस my invoice is I can take only 97% of my supplier's tax invoice. That's a $1 billion question which I always have. ललित जी आप जो बात बोल रहे थे ना, ललित सर आप जो बात बोल रहे थे वो सही बात बोल रहे थे, पर मैंने ऐसा देखा है कि जैसे LNT वगैरह जो LNT जो है उसका कुछ यहाँ काम चलता है, तो उसने अपने जितने उसके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको हर महीने बोलता है कि जो आपने GSTR 3B भरा है उसका B2B आप मुझे मेल करिए पूरा स्क्रीनशॉट या जैसे भी हो डाउनलोड करके, तब मैं आपका GST आपको मतलब आपका GST हेल्ड अप कर लूंगा। मतलब कहने का मतलब कि वो मांगते हैं कि मेरे ऊपर जो बिल रेज किया गया था उसकी आपने GST पेमेंट किया कि नहीं। Right, so that's why these PSUs and big or corporates having this such agreements and all this process in place. But while coming to like 10 crore, 50 crore taxpayers, I just want कि वो yearly basis पे before filing the completing their books of accounts before 31st March वो अपने एक बार 2A पूरा डाउनलोड कर ले, combined 2A, और उसमें चेक कर ले स्टेटस क्या आ रहा है, एक 3B का स्टेटस और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई का स्टेटस। Yes. गुड सजेशन सर, ये हम लोग Yes. नए टैक्स कंपनी के लिए अच्छा है, गुड सजेशन। ये भी Yes, प्लेस ऑफ सप्लाई, yes sir.
और एक चीज है, एटीए भी आ गए सर अभी आजकल तो 9 फाइलिंग या एटीए में भी, राइट सर, बट अभी मेरे पास 2 अवेलेबल है, तो आई कैन गो एंड चेक 2 एंड 2 बोथ। वहां पे रिमार्क्स में आता है कि आईटीसी एलिजिबल यस या नो, और विद रीजंस आता है। एंड थर्डली हम कैंसिल सप्लाईज का भी देख सकते हैं, जो जिनसे सप्लाई मैंने पहले लास्ट ईयर लिया बट अब कैंसिल हो गए, तो वहां पे कैंसिल सप्लाई का स्टेटस आ जाता है कि वेदर दैट सप्लाई वाज कैंसिल्ड बिफोर अवेलिंग दीस सप्लाईज और आफ्टर अवेलिंग द सप्लाईज। So we can also, we have sufficient time to go back and check the suppliers with the suppliers if we are incorrect with them. And fourthly, we can do a 42-43 rules reversal, because some of the clients have both taxable and exempt versus nil rated supplies. So 42-43 reversal is becomes mandatory there. So that's also one of the compliance which if someone is not following, they can do here by 31st March. Right. ललित जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूंगा। भी रिसेंटली 2 महीने Yes. पहले एक अमेंडमेंट आई हमारे पास कि जो भी हमारा ऐसा एलिजिबल क्रेडिट है जो सपोज मेरे 2B में आ रहा है, तो अब उसने पहले क्या करते थे, हम उसको छोड़ देते थे ना, हम 3B में उसको क्लेम करते थे अदर कैटेगरीज के अंदर, ना रिवर्स करते थे। बट लेकिन डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया है, अमेंडमेंट कर दिया है कि सर आपको पहले उसको क्लेम करना है, उसको रिवर्स करना है आपको, नेट ऑफ नहीं करना उसको। हाँ, इसमें क्या होता है, पहले सपोज पूरे साल में 10 लाख रुपए का इनपुट था, 1 लाख रुपए का मेरा इनएलिजिबल था, 2B में पड़ा था, 1 लाख रुपए का मेरा 2B में नहीं आया, तो इससे डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था कि हाँ जी 1 लाख का नहीं आया आपका, क्योंकि वो टोटल लेवल पे इनएलिजिबल को भी पिक कर लेता था। तो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए अब डिपार्टमेंट ने बोला कि आपको मैंडेटरी रिवर्सल करना है आपको, जो आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है। तो इसके अंदर एक बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करने वाला। अभी हमारी रिसेंटली 21 तारीख को नोएडा के अंदर भी INCOC की मीटिंग हुई थी, वहां भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था डिटेल के अंदर। एक मेरा 2B में इनवॉइस आ रहा है, इनपुट आ रहा है, जिसका एक्चुअल में इनवॉइस नहीं आया मेरे पास अभी, तो अभी मेरे 1 मंथ के 2B में आ रहा है, बट मैं 3B में उसको क्लेम नहीं कर रहा। तो इसके लिए बट मुझे पहले उसको क्लेम करना पड़ेगा, फिर रिवर्स करना पड़ेगा, जब इनवॉइस आ जाएगा उसको मेरे को रिक्लेम करना पड़ेगा बेसिकली। तो ये प्रोसेस फॉलो करना है जब एक्चुअल इनपुट भी है बट अभी आपका एलिजिबल नहीं हुआ, बिकॉज आपको इनवॉइस नहीं आया उसका, ना गुड्स आया, इनवॉइस नहीं आया आपके पास। बिकॉज समटाइम इट हैपेंड कि मुझे 28 मार्च को गुड्स का डिस्पैच हुआ, मुझे गुड्स मिले 2 तारीख को, क्योंकि डिस्टेंस बहुत लंबा है, सब साउथ से गुड्स आ रहे हैं, 5 दिन लगे गुड्स को आने में, इनवॉइस भी तभी आया। तो जो सेलर था उसने मार्च के मंथ में बुक कर दिया, मैंने बुक किया उसको अप्रैल के मंथ में। तो ये इश्यू उस समय आते हैं जनरली, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बता दिया है कि अब आपको पहले क्लेम करके उसको रिवर्स करना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है वहां बेसिकली, और बाद में फिर रिक्लेम कर सकते हैं उस अमाउंट को। और जो आपका इनएलिजिबल है उसको भी इसी रूट से आपको करना है। तो इस पर ध्यान रखना है कि हम जो मार्च की रिटर्न भरे, अगर पहले कोई पार्ट हमारा ऐसा रह गया है तो उसको अब क्लेम करके अब रिवर्स कर ले एटलीस्ट। ऐसे एक जो है और एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या करना चाहिए जीएसटी के हिसाब से। मेरे हिसाब से अकाउंटिंग में भी बहुत सारे चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, मैं जो बिलीव करता हूँ जो मेरे अकाउंटिंग में है ट्रायल बैलेंस में, वही मेरा GSTR 9 के साथ टाई अप होना चाहिए। सिंपली इजी का चीज है। तब मेरा रिटर्न फाइलिंग आसानी हो जाता है, ऑफिसर्स को एक्सप्लेन करना भी बहुत आसानी हो जाता है। जैसा भी संग्राम साहब ने बताया था, ITC claimed available but not claimed, उसके लिए भी I tell clients to pass accounting entries every month, so that when they see the 3B values and my trial balance, they match a lot. Similarly, I have interstate supplies with the same GST and same PAN number, different GST number. That is not a revenue for me. Have a separate liability account for discharge of the GST liability, so that your reconciliation statement, what we talked about, e-way bill and e-invoice or tax sales register, that will help me for my reconciliations to substantiate my data. So have separate ledger accounts for each type of liabilities. SCZ supplies ho, yeah, with payment, without payment, composition supplies, everything have separate ledger accounts. Input tax credit be have a separate for input goods, services, imported services, capital goods, so that your 9 filing will become very seamless. आपका काम तो बढ़ जाएगा, उसमें तो कुछ सवाल ही नहीं है, बट आपका कंप्लाइंस बहुत कम हो जाता है, because we always believe and advocate that cost of non-compliance is higher than cost of compliance. Yes. This motive के साथ अपन लोग चलते हैं, then we don't have any challenges and our reconciliations is automatically taken care basically. ये दोनों अकाउंट जोड़ दो, ये 9 का साथ टैली हो गया, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है ऑडिटर्स को भी, किसी को भी समझाने में।
वो अकाउंटिंग में चेंजेस करना बहुत जरूरी है। अभी तो कम से कम 8 साल हो चुका है हम लोगों को जीएसटी आने के बाद। ऐसे कुछ लोग अभी भी अकाउंटिंग पूरा एक ही लेजर अकाउंट में करते हैं। Yes. So that becomes a challenge for us. We need to sensitize client also on this aspect. शर्मा जी, आपका क्या राय है इसमें? तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं तो खुद कहता हूँ कि हमेशा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और फॉरगेट अबाउट नेटिंग ऑफ नहीं होनी चाहिए। जितने भी लेजर आप बना लें उतना अच्छा। लेजर बनाना इजी है, लेकिन बाद में रिकंसाइल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका जवाब नहीं देते लेजर बनता, नोटिस आते हैं जवाब नहीं देते बनता सर, वो बहुत मुश्किल हो जाता है सर। डेटा खोजने में टाइम निकल जाता है आपको सर। बाद में नोटिस और रिप्लाई रेडी करेगा, उसको बनाना पड़ता है डेटा। यस एग्जैक्टली वही हो रहा है सर। वो नए क्लाइंट है, मेरा नया प्रैक्टिस है, नए क्लाइंट को नोटिस है, उनको रिप्लाई मुझे रिप्लाई कुक करनी पड़ रही है। सही बात है सर। क्लाइंट कहेगा ये रहा मेरा लेजर अकाउंट, आप निकाल लो जो निकालना है। और ये बहुत बढ़िया सजेशन है सर, मैंने नोट डाउन भी कर लिया। एग्जैक्टली मैं नोट भी कर रहा था, ये मेरे लिए भी लर्निंग सेशन था। वाजवा सर, यहाँ पे एक बात और बहुत जरूरी है कि जैसे हम मंथ टू मंथ अपने इनपुट को जो 2V में आ रहा है उसको 3V में लेके उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो सेम एंट्री आपको अपने सॉफ्टवेयर में भी पास करनी है, जिससे कि एवरी मंथ अगर इन बिटवीन कोई जीएसटी ऑफिसर आता है, अगर इंक्वायरी होती है आपकी या ऑडिट होता है आपका, तो उस समय वो चीज बिल्कुल टैली करे बेसिकली आपका। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सारे अपने पार्टिसिपेंट्स की जो आपका कैश लेजर और क्रेडिट लेजर है उसके बैलेंस को भी मंथ टू मंथ आप मैच करते रहे अपने सॉफ्टवेयर से, जो बहुत जरूरी है वो बैलेंस आपकी बुक्स में आता रहे। मतलब फ्रेंड्स, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, हम तरी क्या रॉकेट साइंस की डिस्कस कर रहे हैं, बट एक बार अपनी हैबिट में चीजों को ले आएंगे हम, तो हमारे सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाएगा। हम एक चेकलिस्ट बना ले कि कौन कौन से प्रोविजन हमारे पे एप्लीकेबल होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी वीकली करनी है, मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है। इससे आप देखेंगे कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी लेटर ऑन। बिकॉज जीएसटी में क्या होता है कि अगर 1 साल का नोटिस, फॉर एग्जांपल 17-18 की असेसमेंट अभी 31 दिसंबर 2023 को हुई है, 5 साल बाद हुई है, तो ऐसे आज जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इसकी इंफॉर्मेशन आपसे आज नहीं मांगेंगे, 5 साल बाद मांगेंगे। तो आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन को, अकाउंटिंग को इस तरह से तैयार रखना है कि 5 साल बाद भी आप वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए हैंडी हो और आप इजीली डिपार्टमेंट को दे पाए, उनको कन्विंस कर पाए बेसिकली। मतलब अकाउंटेंट कोई भी हो, बट इंफॉर्मेशन आपकी इजीली प्रिपेयर हो जाए। जनरली हम एक्सक्यूज देते हैं कि हमारा अकाउंटेंट छोड़ के चला गया, पहले कोई और अकाउंटेंट था। हमें ऐसे प्रोसेस बनाए कि हमें रिक्वायरमेंट ही ना हो, अकाउंटेंट कोई भी हो, काम एक स्ट्रीमलाइन तरीके से हो जिससे कि कभी भी वो इंफॉर्मेशन दी जा सके। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास सेक्शन 147 के अंदर पहले 6 साल तक का टाइम हुआ करता था, अब वो टाइम बढ़ के 10 साल का हो गया है। अगर आपकी 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम स्केपिंग है तो 10 साल तक आपके केस खोले जा सकते हैं। तो इसलिए आज की डेट में रिकॉर्ड्स को 10 साल तक हमें मेंटेन करना है। तो इसलिए मतलब अगर अपने रिकॉर्ड्स को ऐसे बनाए कि भैया ये सिर्फ 1 साल में खत्म नहीं करना, मतलब 10 साल तक मेंटेन करने हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा अपने केस को करवाना और अपनी बुक्स को मेंटेन करवाना। तभी तो हम कहते हैं कि सिस्टम शुड रन द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द पीपल। यस सर। तो टाइम हमारा हो चुका हुआ है, लेकिन लास्ट एक पॉइंट और जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज ऑन 31 मार्च। खास करके टेलीकॉम सेक्टर के अंदर है या और भी जो कंटिन्यू सर्विसेज है वहां पे रेवेन्यू जो है, क्योंकि 31 मार्च को टेलीकॉम सेक्टर का जो कट ऑफ है वो 31 मार्च को रात को 12 बजे का है, और मेरी इनवॉइसिंग होती है 1 अप्रैल या उसके बाद। तो ऐसी या कंटिन्यू सर्विसेज जहाँ पे बिल सर्विस हो चुकी है और बिल मेरा बाद में अभी आएगा, तो वहां पे भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो इशू है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मुझे 31 मार्च को एस्टेब्लिश करना होता है, और उसके लिए मेरे प्रॉपर बेसिस होने चाहिए। मैं तो कहूँगा उसके लिए प्रॉपर कंपनी की पॉलिसी इन ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, प्रॉपर डिक्लेरेशन के साथ और डिस्क्लोजर के साथ कि मेरा ऐसी सर्विसेज का अगर मेरा बिजनेस है या कुछ है तो 31 मार्च को मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे करूंगा और मेरी जीएसटी लायबिलिटी कैसे बनेगी और मैं कैसे उसको करूंगा। इस पे अगर आप लोगों का कुछ पॉइंट हो तो विद इन फ्यू मिनट्स आप डिस्क्राइब कीजिए, फिर हम आज का सेशन यहीं पे बंद करेंगे। बस मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं, मेरी तरफ से एंड है आज का सेशन। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं आरसीएम को लेके। बहुत बार देखा गया है कि हमने बहुत सारे एक्सपेंडिचर अपने बुक्स अकाउंट में डेबिट कर रखे होते हैं, उस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा नहीं कर रखा होता। तो मुझे लगता है मार्च एक बड़ा अप्रोप्रिएट मंथ है। अगर आप पहले नहीं कर पाए, हाँ मैं हम पहले अगर वो नहीं कर पाए आरसीएम में जीएसटी डिपॉजिट अगर मार्च के मंथ में कर देंगे विद इंटरेस्ट, तो विद इन फाइनेंशियल ईयर आपकी लायबिलिटी क्लोज हो जाएगी, और ये वेरी लेस चांसेस कि आपको कोई फर्दर नोटिस आएगा। तो विद ऐसे एक्सपेंसेस देखो गुप्ता सर, बीएम सर, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हर आदमी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। अपनी
से नहीं करा सकता, अपने जीएसटी रिटर्न चार्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से नहीं फाइल करा सकता, ही हैड टू रिलाई ऑन द अकाउंटेंट। तो इसलिए हाँ। एक बिजनेसमैन को खुद ही अवेयर होना पड़ेगा कि क्या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिकॉज ये दो मेजर टैक्स है, इनकम टैक्स और जीएसटी, जो आपके अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं तो आपके बिजनेस को मल्टी फोल्ड कर सकते हैं। आप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते तो आपके बिजनेस को ताला भी लगा सकते हैं। बेसिकली ये दोनों अपने आप में इतने मेजर एक्ट है, उन पे बहुत पावर है, मतलब दोनों एक्ट के अंदर बेसिकली। हाँ सर, तो मेरी इसके लिए ना सर हमारा मैं टैक्स आपकी बुलेटिन बात में को हम लोगों ने एक स्कीम ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज जो हर टैक्स पेयर को मेंटेन करना चाहिए, वो सब पब्लिश करवाया था हम लोग एक्चुअली, सो दैट आप जैसा बोल रहे हैं एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड अ प्रोफेशनल बेसिकली, एटलीस्ट दैट डॉक्यूमेंट कैन बी टेकन एज अ बेस एंड पीपल कैन implement it wherever required, whenever they come we can substantiate to them basically. Even for us we cannot oversee so many clients in one go, we also have time constraints और पूरा constraints हम लोगों के लिए भी. So the CMA ensured we are taking care of this as you rightly said. और एक पॉइंट है मेरे साइड से फॉर कंक्लूडिंग द सेशन, प्लीज वेरीफाई योर ट्रायल बैलेंस एटलीस्ट क्वार्टरली वंस to see whether you skipped out any input tax credit or accounting of any revenues, so that by the time it comes to the March 31st, many of the things are minimized for you. Recently एक केस देखा था मैंने, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आरसीएम पे पे कर रहे हैं जीटीए के ऊपर व्हाट वाज रिफ्लेक्टेड इन 2B, दैट मींस ही इज रजिस्टर्ड, बट इन लोगों के पास पेमेंट भी होता है हु आर नॉट रजिस्टर्ड आल्सो, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। जब तक आप ट्रायल बैलेंस देकर रिव्यू नहीं करते हैं वो चीज आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एटलीस्ट क्वार्टरली टेक द ट्रायल बैलेंस, रिव्यू द हेड्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर व्हाट इज द आईटीसी इंपैक्ट, व्हाट इज द रेवेन्यू ऑन द लायबिलिटी इंपैक्ट, डू द रिकंसिलिएशंस, पास अकाउंटिंग एंट्रीज, क्लियर द टैक्स लायबिलिटीज। एंड शर्मा जी ने तो स्टार्टिंग में बताया था एवरी रुपी सेव्ड इज रुपी अर्न्ड। अगर मेरा आईटीसी है, if I'm losing that, that means it is impacting my bottom line. Actually, problem is that we have to convince our client कि सर आप क्वार्टरली जो ट्रायल बैलेंस है उनको मदद करिए। मैंने 2-3 अपने बड़े क्लाइंट का चालू किया था, पर they were taking it very casually कि सर ईयर एंड में करेंगे, क्यों हमसे इतना डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। That is the problem. We have to educate them. You are very much Yes, right, sir. sir. We have to educate our clients. Yes. Educate them, sir. And we need to So show the value addition what they're getting friends, actually. I would suggest over here. Yeah. So lastly मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे लेजर्स अकाउंटिंग को लेके, तो जितने भी हमारे आरसीएम वाले लेजर है, मेरे हिसाब से वो बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से लेजर खुल जाना चाहिए आरसीएम से रिलेटेड जो है, तो वो आपका रिकॉन्सिलिएशन का काम बहुत जल्दी आसान कर देगा। उसमें आपको डिफरेंस आने की या कुछ होना गलती होने का चांसेस ही खत्म हो जाएगा। तो हमें अपनी अकाउंटिंग जो है जीएसटी के लॉ के साथ मैपिंग करते हुए लेजर्स में अकाउंट खोलने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा एक अच्छा इफेक्टिव अकाउंटिंग सिस्टम बनेगा और वो बिजनेस को हेल्प करेगा, टाइम भी सेव करेगा। तो विद दीज लाइंस I really thanks to each one of you for actively participating and giving your valuable additions to the clients and to the stakeholders also. And we hope that this type of inputs or discussions should continue, and it will help all of us, including the business community and the government also. And really thanks to Sandeep for such type of initiative. He is doing a wonderful job in the country, especially in the northern India. Now over to Sandeep ji if he is there in the session, please. सर ये प्रोग्राम फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब पे लाइव था। एक क्वेश्चन आया था फेसबुक के थ्रू, छोटा सा क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन है 1 ईयर के लिए, मार्च में उन्होंने किया है, और क्या दूसरा। Good evening, friends. All the best and happy Holi to all of you and to your family members. अनिल सर संदीप जी है अभी, वो अपनी बात पूरी कर रहे हैं संदीप जी सर। दूसरा बिल वो मार्च में दें या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दें, उनके लिए सजेशन मांग रहे हैं फेसबुक के थ्रू। संदीप जी क्वेश्चन ये है कि एक बिल आप दे चुके हो जो 12 महीने से पेंडिंग है, अब एक फ्रेश इनवॉइस इशू करना है, अब वो सेम फाइनेंशियल में दे नेक्स्ट फाइनेंशियल में दे, ये पॉइंट है सर आपका। हाँ, ये इन्होंने पूछा हुआ है फेसबुक के थ्रू। हाँ संदीप जी, जो मेरा मानना है यहाँ पे कि जैसे आपकी सर्विस कंप्लीट हो, हमें तो जीएसटी पे करना पड़ता है, एडवांस और इनवॉइस जो विचएवर इज अर्लियर एक तरह से हमें इनवॉइस बुक करना पड़ता है। अगर मार्च के अंदर वो अपना इनवॉइस रेज कर देंगे तो मार्च के मंथ में उनको जीएसटी जमा करने की लायबिलिटी आ जाएगी, चाहे पेमेंट रिसीव हुई नहीं हुई वो उनके लिए मैटर नहीं करता बेसिकली।
तो अब उनको ये देखना है कि उनकी सर्विसेज का कंप्लीट हुई है, उनकी क्या टर्म एंड कंडीशंस है इनवॉइस रेज करने की, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वो इनवॉइस रेज करेंगे तो बेटर रहेगा। बट यहाँ पे उनके लिए एक सजेशन है, सर बताऊं मैं आपको, यहाँ पे एक सजेशन क्या है कि मतलब अगर वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो वो उस कंपनी को एमएसएमई के थ्रू अपनी रिकवरी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज अगर किसी भी एमएसएमई रजिस्टर्ड सप्लायर की 45 डेज में पेमेंट नहीं आती तो एमएसएमई डिपार्टमेंट में एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं बेसिकली। संविधान स्कीम में लेके वो कंप्लेंट करके वो पूरा दे कैन डू द ड्यू प्रोसेस एक्चुअली एमएसएमई संविधान स्कीम में। मेरे तरफ से यही सबमिशन है सर आपका कि यदि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी कंपनी से, आपने एक बिल मार्च में दे दिया है और रनिंग बिजनेस है, तो आप ईयर एंड को नहीं देखें और अगला बिल जब आपको देना है 2-3 महीने के बाद तो आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें सर। बट लेकिन सर्विसेज है तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का भी प्रोविजन में ध्यान रखना पड़ेगा एक्चुअली। सर्विस कंप्लीशन होने के बाद 30 दिन में मुझे इनवॉइस काटना पड़ेगा। संदीप जी, हम ये बात ना इस प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन ही कह सकते हैं, जो आप बात कह पा रहे हैं इतने बेबाकी से, हम इस प्लेटफॉर्म से लीगल बात ही कह सकते हैं एक्चुअली। यस, थैंक यू सर। आप लोगों ने कंक्लूड करते हैं कि कल होली है और कल अब मार्केट थोड़ा जाना है। जी जी, हम लोग सर 15-15 दिन पे मिलते रहेंगे और इसी तरह से डिस्कशन करते रहेंगे, खासकर जीएसटी टॉपिक पे हर 15 डेज में एक प्रोग्राम होगा। आप लोगों ने ज्वाइन किया, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you everyone. Happy Holi to everyone. एंड होली के शुभकामनाएं सबके लिए। Thank you. गुड नाइट। Thank you audience. Yes. Good night.